Okay, so welcome back. Okay, ये लास्ट क्लास कब खत्म हुई है आपकी? ऊप्स की मेहुल, yes, शुभम, you there? कब खत्म हुई है आपकी ऊप्स की क्लास? मैम बस 2 मिनट पहले। अच्छा, 12:20 पे स्टार्ट हुई थी। कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 12:15 पे। 15 पे। अच्छा, 40 मिनट्स की क्लास होती है ना? 2 मिनट पहले। ओके, इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है आपकी? इसके बाद भी क्लास है कोई? यस मैम, एक और है। Chalo, let's get started with what we have studied yesterday. We have started with the introduction part of database management system, and in that we have studied what is a database and what are the type of database. Then we have studied about your difference between your file system and database management system. So ये difference सबको clear है? The key points, how a file system is different from a database management system. Yes, Nikita, how is a file system different from a database management system? Nikita Yadav, you were there in the last class? कल क्लास ली थी आपने? Nikita Yadav, who wants to add on? Who wants to answer this question? कि how a file system is different from a database management system? हाँ जी आयुष, tell me. मैम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको रिडंडेंसी नहीं होती है, फाइल सिस्टम में आपको You're not रिडंडेंसी audible, हो। Ayush. मैम एम आई ऑडिबल? Okay, you're not audible. Who wants to answer this question? See, we have studied. Hanji Manish, you want to say something? There are a number of points that you can add, you can say about a file system and a database management system. That a file system basically stores all your data onto a storage medium like your DVDs or like your secondary storage, like inside your computer system. When you are using a single system, तो जहां पर आपको अपना डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, वो फाइल सिस्टम के वे में सेव होता है. यू कैन यूज एनी ऑफ द फाइल सिस्टम. NTFS यूज कर सकते हो, EFS यूज कर सकते हो. फाइल सिस्टम में there is no provision of data recovery. Once your data is lost, in case of crash, अगर आपका system crash हो गया, so you cannot able to recover your data. But if you are using a database management system, there are some methods through that you could be able to recover your data. So data recovery is available. Data redundancy बहुत ज़्यादा होती है फाइल सिस्टम में. हमने पढ़ा था कल. What is data redundancy? Duplicacy of data. You have duplicate data available on multiple files. That leads to data inconsistency. ये सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी कल, याद है? डेटा इनकंसिस्टेंसी पढ़ा था. यस ठीक है. डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसकी वजह से देयर इज नो डेटा इनकंसिस्टेंसी. You have secure data. Security is at higher level in database management system, and file system के अंदर there is no provision of giving security. आप अपनी files को secure नहीं कर सकते हो. ठीक है, बहुत सारे points है. Just go through with all the points. This is one of the question that you have to prepare. ठीक है, from your university point of view, this question may ask, and this is a question which has been asked the last year when जब आपके physical exams हुए थे, the difference between database management system and a file system. ठीक है. So in today's class, what is the topic that we are studying is, we are studying with database management system. क्या होता है database management system? What are the basic advantages and disadvantages? And more importantly, we are looking up with the architecture of database management system.
So these are the topics that we have to cover in today's class. So shall we start? क्या पढ़ना है हमें? We have to start with what is a database? Yes, database management system. DBMS क्या होता है, इसकी advantages क्या है and disadvantages क्या है, ठीक है? Then we have to look the architecture of database management system. These are the three topics that we have to study. So who wants to start with database management system? क्या होता है एक database management system? Yes, Akshar Bhardwaj. What is a database management system? In any layman terms, you have understood what you have understood about DBMS. Alicia? Yes, class. Any one of you wants to say about DBMS? May I? सॉफ्टवेयर है which is used for creating कमाल है. No one wants to answer. मैनेज करने के लिए डेटाबेसेस के लिए सॉफ्टवेयर है. आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? You are not audible. कोई भी बोल रहा है. डेटाबेस मैनेजमेंट. No, ma'am. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Database management are a software system used to store Yes, and Vinay, retrieve and मैं run. answer कर रहे हैं. Hello. मैं तो ऑडिबल हूँ बट आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है. Hello. अभी नेटवर्क इशू हो सकता है फिर. हेलो. कमाल है. रुको रुको रुको, मेरा माइक तो ऑफ नहीं है. एक मिनट. आपका माइक तो ऑन है तभी तो आवाज आ रही है. अब बोलो. हेलो. हाँ, नाउ यू आर. Hello. हाँ जी, हाँ जी. Hello. Now you are. अलीशा बोलो. And database management system are a software system used to store and retrieve and run and on a data and server interface between end user. And See, the don't user read is out allowed any to create. See, I don't want you to read out a definition. I just want to hear what you have understood about DBMS. What is your definition? मैम डेटा को मैनेज Ma'am, करने के लिए it's basically सॉफ्टवेयर. a system. Ma'am, manage. हाँ, देखो अब एक बात बताओ. आपके कॉलेज में बच्चे हैं, ठीक है? अब उस टीचर्स हैं, स्टाफ है. अब उनके अगर there is no management over there, how to manage the students, how to manage the teachers. So some मतलब कि एक स्टूडेंट से हम कैसे काम करवा सकते हैं, टीचर्स से हम कैसे काम कर सकते हैं. We required some management. Similarly, हमारे पास डेटाबेस तो आ गया. अब उस डेटाबेस को कैसे हम मेंटेन करेंगे? हाउ कैन वी ऐड सम रोज इनटू अ डेटाबेस, और हाउ कैन वी डिलीट अ डेटाबेस, हाउ कैन वी रिट्रीव इंफॉर्मेशन. सो ऑल सच ऑपरेशंस can be easily performed with help of a software which we called as database management software. ठीक है? So database management system is a kind of a software that allows us to operate various operations onto a database. Now, अगर मैं बात करूं what are the advantages? अब अगर हम एक DBMS यूज करते हैं, अब आपने देखो कल पढ़ा था फाइल सिस्टम और DBMS के बारे में पढ़ा था ना, तो आप बता सकते हो कि एडवांटेजेस क्या क्या होती है? यहाँ पे I am taking you to this page. Yes. So यहाँ पर हमने पढ़ा कि it is a software system that allows the user to define, to create and to maintain the database and provide control access. Control access का मतलब क्या है कि it's not कि कोई भी यूजर आके आपके डेटाबेस को एक्सेस कर ले. नो, अभी आप जैसे आज की क्लास में, मॉर्निंग क्लास में हमने देखा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी होती है जिसमें आप एक्सेस ग्रांट करते हो यूजर को. यू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अथॉरिटी कि कौन सा यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूजर एक्सेस नहीं कर सकता. यू कैन रिवोक सम परमिशंस और यू कैन ग्रांट सम परमिशन. सो database management system की help से you can also provide some kind of a security to your database by granting access to the users. आप authority दे सकते हो कि some users have some authority to access particular table. जैसे यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में स्टूडेंट के पास एक अथॉरिटी है कि वो सिर्फ व्यू कर सकता है, वो एडिट नहीं कर सकता. सिमिलरली टीचर्स हैज अथॉरिटी कि वो एडिट भी कर सकते हैं. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेजेस आपको बतानी है. एडवांटेजेस क्या क्या होती है? फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गई? रिडंडेंसी नहीं होती है इसके अंदर. रिडंडेंसी का क्या मतलब है? डुप्लीकेसी.
डुप्लीकेसी मतलब कि जैसे यू डू नॉट हैव अ डुप्लीकेट डेटा, जैसे अगर आप बोलो कि एज है या यू आर मेकिंग अ टेबल जिसमें यू कैन नॉट हैव टू कॉलम्स विच आर हैविंग द सेम नेम, और you do not have you cannot have data which is having duplicate data। जैसे अगर आपने नाम डाला तो नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है, राइट? उसके अंदर आप जब क्रिएट टेबल करोगे तो उसमें वो आप कंस्ट्रेंट दे सकते हो। अभी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है? First thing that you have to understood about DBMS, we are learning about the advantages. The very first advantage is the redundancy. फाइल सिस्टम के अंदर देखा था कि आपके पास redundant data होता है, you have duplicate data, you can have files which are having the similar data, है ना? Similar data की help से क्या होता है, data inconsistency की problem आती है। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नाम का एक फील्ड है और वो 2-3 फाइल्स में है, और अगर आप एक फाइल में अपडेट कर दिया, दूसरी फाइल में अपडेट नहीं किया, सो इफ यू आर एक्सेसिंग कॉन्टैक्ट नंबर ऑन फ्रॉम वन फाइल और दूसरी फाइल में हर जगह डिफरेंट नंबर विजिबल हो रहा है, तो वो फीचर क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी, विच इज नॉट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पर यही पॉइंट, आई एम नॉट रीडिंग द लाइन्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि इनका क्या मतलब है, ठीक है? तो रेडंडेंसी प्रॉब्लम आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नहीं होती है, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक अपॉन टू इज सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी आप दे सकते हो क्योंकि आप डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हेल्प से यू कैन रिवोक मतलब अपनी परमिशंस को ले सकते हो कि आपने किसी को कोई परमिशन ग्रांट करी, यू कैन टेक इट बैक, you can grant the permissions, you can revoke the permissions by the help of DCL, that is data control language. So security is at high level. Data integrity होती है। integrity का मतलब क्या है कि अगर data integrity का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड का डेटा, जैसे एज है, एज का आपने इंटीजर सेट किया, तो यू कैन नॉट स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स टू इट, यू गेटिंग इट? अगर आपने किसी का वैर कैर किया या किसी का कैरेक्टर टाइप किया, तो उसके अंदर आप इंटीजर डेटा नहीं डाल सकते। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपने उसका टाइप सेट किया है, आप उसी टाइप का डेटा उसके अंदर डाल सकते हो, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, बट ये फीचर आपका अवेलेबल नहीं है फाइल सिस्टम्स के अंदर, ठीक है? तो दीज आर द सर्टेन फीचर्स, जस्ट गो टू विद द एडवांटेजेस। This question has not been asked any time. I have not seen this question before, but because our subject is database management system, so you must be knowing about what are the advantages, why we are studying this subject, what are the basic difference between file system and database management system, then database architecture kya hota hai, that is the main topic of today's class. What is the database management architecture? ठीक है, 3 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। सो जल्दी से वी जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, देन वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक, ठीक है? इट कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, एंड मल्टीपल यूजर्स आप खुद देखोगे, यू कैन हैव मल्टीपल। जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो यू विल एबल टू सी कि आपके डेटाबेस को नंबर ऑफ यूजर्स could be able to access, ठीक है? हर यूजर्स की परमिशंस अलग अलग हो सकती है, बट इट कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, ठीक है? जबकि फाइल सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स, फाइल सिस्टम बेसिकली एक सिंगल यूजर अपने लिए यूज करता है। जैसे अगर आप अपने सिस्टम पे अपनी फाइल्स को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, उसमें द सिस्टम बिलोंग्स टू यू और 2 or 3 यूजर्स, उससे ज्यादा तो यूजर्स आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं करेंगे ना। तो फाइल सिस्टम में लिमिटेड यूजर्स होते हैं, वेयरएज डेटाबेस अगर आप बात करो, लेट मी टेक यू एन एग्जांपल कि कोई अगर वेबसाइट है या इंडियन रेलवेज की वेबसाइट है, उसमें कितने नंबर ऑफ यूजर्स एक बारी में टिकट बुक कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स कैन एबल टू एक्सेस, तो वो डेटाबेस आपका कहाँ स्टोर है, डेटाबेस सर्वर पे इंडियन रेलवेज के, और आप एक वेबसाइट की हेल्प से, एक एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से यू आर एबल टू एक्सेस the website from to your client machine. तो वो अभी it is a kind of an example of database architecture. मैं बताऊंगी ये कौन सा architecture है, but I am just giving you an example of multiple users कि एक database को there could be number of users could able to access, ठीक है? तो ये उस फीचर को सपोर्ट करता है। तो हमने पढ़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिडंडेंसी को अवॉइड करता है, इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करता है, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर
फीचर्स कह लो या एडवांटेजेस कह लो. Am I you all are clear with the term? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स समझ में आए, एडवांटेजेस सबको यस क्लियर है, मैम। ठीक है. Yes, ma'am. तो दीज आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस. अब इन एडवांटेजेस को आप फाइल सिस्टम का जब डिफरेंस मे बी अगर आपका डिफरेंस आता है तो आप इन एडवांटेजेस को यूज कर सकते हो व्हाइल एक्सप्लेनिंग अबाउट अ फाइल सिस्टम, ठीक है. तो दिस इज द वे हाउ यू प्ले विद द आंसर्स, ठीक है. अब हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस है डीबीएमएस के. ऑब्वियसली देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. देखो, जितना बड़ा आपका डेटाबेस होगा उसको मैनेज करने के लिए, जितना ह्यूज डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए उतनी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है ना. तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है इफ यू हैव अ ह्यूज डेटाबेस एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ यूजर्स आर एक्सेसिंग इट. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज दैट कम्स अप विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. तो पहला डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इज अनदर काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज. परफॉर्मेंस से क्या समझते हो कि जैसे अब हम लैब में पढ़ेंगे, हम अपने टेबल्स को रन करते हैं, टेबल्स क्रिएट करेंगे, उसमें क्वेरीज रन करेंगे. आप खुद देखोगे जब आप एक क्वेरी को रन करते हो ना, इट विल टेक अ फ्रैक्शन ऑफ 1 to 3 सेकेंड्स जिसमें आपके पास आंसर आएगा. और अभी तो ये है एक बेसिक, आपने अपने ही क्लाइंट मशीन पे टेबल्स क्रिएट करी और काम कर रहे हो, है ना. बट जब हम वी आर वर्किंग ऑन अ रिमोट सर्वर एंड वी आर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम आवर मशीन, तो उस केस में परफॉर्मेंस, अगर आपका ह्यूज डेटाबेस है, नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, समटाइम्स देखते हो ना कि सर्वर हैंग हो जाता है, आपके पास डेटा आने में टाइम लगता है, तो वो परफॉर्मेंस वाला पॉइंट होता है, ठीक है. तो उसमें अगर आपके पास ह्यूज डेटाबेस है और उस तरीके की उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है टू हैंडल सच नंबर ऑफ यूजर्स एट अ सेम टाइम, तो उस केस में द परफॉर्मेंस विल डिग्रेड. The performance is another issue, or we can say a disadvantage that comes up with database management system. Impact of failure भी है आपका database failure, database management system के अंदर sometimes your database crash भी हो जाता है, ठीक है. तो उसमें आपकी रिकवरी अवेलेबल होती है, बट रिकवरी की भी कुछ लिमिटेशन है कि कुछ हद तक आप रिकवर कर सकते हो. साइज की कुछ लिमिटेशन है कि आपके कितने साइज का आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. तो दीज आर द लिमिटेशंस और यू कैन से द डिसएडवांटेजेस दैट कम्स अप विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. तो ये सारी है आपकी. कॉस्ट भी है ऑब्वियसली, जितना बड़ा डेटाबेस करोगे उसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड कॉस्ट आल्सो, ठीक है. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू लुक अप व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इस सब्जेक्ट में, वी हैव जस्ट सीन दैट व्हाट इज अ डेटाबेस, डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, और डेटाबेस के अंदर हमने देखा कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी क्या एडवांटेज. मैम, हाँ बोलो मेहुल. मैम एक बार डेटाबेस स्कीमा दोबारा बता देना शॉर्ट में. अच्छा जरूर. देखो मैंने बताया था डेटाबेस स्कीमा, बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि जब आप एक घर बनाते हो, ठीक है, I'm telling you a real time example कि whenever you make a house, तो आप क्या करते हो, उसका ब्लूप्रिंट पहले पास कराते हो. मतलब कि जब आप कोई घर बनाते हो तो उसका नक्शा पास कराते हो कि वो घर कितने एरिया में होगा, उसमें कितने रूम्स होंगे, हर एक रूम का कितना डायमेंशन होगा. या आप कोई भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसका एक प्रोटोटाइप बनता है. यू नो व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? यस मेहुल. ब्लूप्रिंट टाइप का. यस मैम. हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आप जब भी कोई रियल टाइम कोई भी चीज बनाते हो, जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया, यू आर मेकिंग अ हाउस, अब उस हाउस का नक्शा पास कराते हो ना पहले कि उसका कितने एकड़ में होगा या कितना लोकेशन में होगा, उसका क्या एरिया है, कितने रूम्स है, हर एक कौन सा बेडरूम होगा, कौन सा किचन होगा, कौन सा स्टोर रूम होगा. तो यू विल डू द स्ट्रक्चर, यू विल बिल्ड अप द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस फर्स्ट, है ना. उसी तरीके से जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो ना, तो उसमें आप टेबल बताते हो कि कौन कौन सी टेबल होगी, हर एक टेबल में कितने कॉलम्स है, उन कॉलम्स का क्या नाम है, उनका क्या डेटा टाइप है, उनके क्या साइज है. तो ऑल सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनसाइड अ टर्म व्हिच वी कॉल्ड एज डेटाबेस स्कीमा, ठीक है. उसको हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा. तो डेटाबेस स्कीमा अगर आप कहीं पे भी डेफिनेशन रीड करोगे तो यू विल जस्ट रीड आउट कि दैट इट विल डिस्क्राइब यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, about the structure of the database, ठीक है. तो structure of the database से आप क्या समझ रहे हो कि what all the columns it will have,
but all the tables it will have, tables के अंदर columns कौन कौन से होंगे, ठीक है, उन columns के name क्या है, column name, then उनकी type क्या होगा, ठीक है, उनका size क्या होगा, all such information is being stored inside a database schema. Now, are you able to clear this? Am I able to clear this point? यस मैम। ठीक है, हो गया सबको क्लियर डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये और बहुत जगह यूज होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस स्कीमा। अब आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस आर्किटेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको फीचर्स क्लियर हो गए, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, now the main topic that we have to start today is DBMS architecture. DBMS architecture से हम क्या समझते हैं कि what is the design of your database? Database management system का क्या design है? तो design का मतलब क्या होता है कि how will it look up to, कि वो कैसा देखेगा? Basically it जो database architecture है ना, it basically depends कि how the users are connected to the database. This is the best definition I can give up to you कि database architecture basically help us to know how we as a users are connected to the database. Are we directly connected to the database, or the database is present at some other location and we are accessing the database from remote location, or there is some middle layer available and with the help of some middle layer we are able to access the database. तो ये तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? First is one tier architecture. The type of the DBMS architecture is 1 tier, 2 tier and 3 tier. अब 1 tier का अगर मैं नाम लूं तो 1 tier architecture basically जैसे अभी मैं क्या करूंगी, आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग जब लैब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम बेसिकली एक SQL सर्वर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, डेटाबेस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, विल बी मेकिंग अ डेटाबेस ऑन आवर सिस्टम मशीन। वही क्लाइंट है, वहीं पे डेटाबेस है, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस, वी कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट द क्वेरीज। तो जो आपका 1 tier आर्किटेक्चर है, इट इज बेसिकली कि योर डेटाबेस इज ऑन योर मशीन इटसेल्फ। यू गेटिंग इट? मैं अभी आपको बेसिक लेमैन डेफिनेशंस दे रही हूँ, देन वील बी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और डायग्राम की हेल्प से भी करेंगे। तो अगर 1 tier आर्किटेक्चर का मैं एग्जाम्पल दूं, इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल कि जो हम अपने ही डेस्कटॉप पे या अपने ही लैपटॉप पे अगर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, ठीक है, जैसे हम लैब को रन करने के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए हम SQL सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, विल बी एग्जीक्यूटिंग द SQL क्वेरीज ऑन टू इट। तो वो एक एग्जाम्पल है 1 tier आर्किटेक्चर का कि योर क्लाइंट मशीन इज डायरेक्टली एक्सेसिंग योर डेटाबेस बिकॉज द डेटाबेस इज अवेलेबल ऑन द मशीन इटसेल्फ। अब 1 tier आर्किटेक्चर के क्या क्या पॉइंट्स, इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगी बताओ? जब आपका ही अपना ही डेटाबेस अपनी ही मशीन पे है तो आप अपने डेटाबेस को कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई इसमें सिक्योरिटी नाम की चीज तो है नहीं। बेसिकली इट इज ए पर्सनल डेटाबेस, इट इज नॉट योर पब्लिक डेटाबेस ना, आपका अपना डेटाबेस है और आप ही ने ही क्रिएट किया एंड यू आर इटसेल्फ यूजिंग इट। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ 1 tier आर्किटेक्चर। तो बेसिक आर्किटेक्चर है एंड ये आर्किटेक्चर इज नॉट, मतलब कि इट इज नॉट सो फेमस बिकॉज ये आप अपनी पर्सनल यूज के लिए क्रिएट करते हो। क्लियर है ये वाला आर्किटेक्चर? The 1 tier architecture, the database is directly available to the user. It means the user can directly sit on the DBMS and use it. DBMS मतलब कि आपका ही अपना database management system है because you have created the database and you can directly access it. आप उसको कभी भी change कर सकते हो, है ना? बहुत handy है। So this is an example of this is the basic definition of 1 tier architecture. 1 tier architecture लोकल एप्लीकेशन, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन अपने ही सिस्टम पे रन करनी है तो उस एप्लीकेशन अगर डेटाबेस का यूज कर रही है तो आपने SQL सर्वर अपना इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे, एंड इफ यू आर रनिंग एनी एप्लीकेशन जो डेटाबेस का यूज करता है और डेटाबेस कहाँ है, आप ही के सिस्टम पे है, तो ये कौन सा आर्किटेक्चर हो गया? ये दिस इज एन आर्किटेक्चर विच वी कॉल्ड एज 1 tier आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें रिस्पॉन्स कैसा होगा? इसमें रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होगा, परफॉर्मेंस क्या होगी? अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें यूजर्स तो बहुत कम है, हार्डली 2-3 यूजर्स, क्योंकि आपकी अपनी एप्लीकेशन है, या तो आप यूज कर रहे हो या आपके साथ 1-2 बंदे और आपकी टीम के एक आध पर्सन और यूज कर रहे हैं।
तो इसमें और क्वेरीज भी लिमिटेड होगी आपकी, कम्युनिकेशन फास्ट होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है 1 टियर आर्किटेक्चर सबको? यस मैम। ठीक है, 1 टियर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल भी क्लियर है सबको? सिद्धार्थ वर्मा। Yes, sir. ओके, नाउ 2 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, जैसे एनी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, कोई भी अगर आप क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बना रहे हो, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि यू आर अ क्लाइंट, यू आर वर्किंग ऑन अ एप्लीकेशन विच इज ऑन योर मशीन। आपके अपने सिस्टम पे एप्लीकेशन, देखो आप सबने OSI मॉडल पढ़ा है ना, पढ़ के आए हो सब FCPC में OSI मॉडल। आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन लेयर? You all know what is the meaning of application layer? जहां पर एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन रन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर। और वो एप्लीकेशन लेयर 2 टियर आर्किटेक्चर में कहां पर है? आपकी अपनी क्लाइंट मशीन पे, जहां पर आप बैठ के काम कर रहे हो। नाउ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज मेकिंग यूज ऑफ द डेटाबेस। वो डेटाबेस से क्वेरी कर रही है, बट वो डेटाबेस कहाँ है? इट इज सम एट सम रिमोट पोजीशन, रिमोट लोकेशन। वो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेटाबेस सर्वर। जैसे इसका एग्जांपल मैं, ये दिस इज अ डायग्राम ऑफ दिस, जैसे ये देखो, दिस इज अ डायग्राम। ये आपकी क्लाइंट मशीन है, यू आर अ यूजर एंड यू आर वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन विच इज ऑन योर ओन मशीन। ठीक है, आपकी अपनी मशीन पे, एंड दिस एप्लीकेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस सिस्टम विच इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। मतलब कि इट इज नॉट ऑन योर मशीन, इट इज ऑन द सर्वर विच इज एट सम अदर पोजिशन, which is at some other location. Now, you need to first establish a connection between the application and the database system by using JDBC ODBC connection. अभी आपको नहीं पता what is JDBC ODBC? JDBC का मतलब होता है Java Database Connectivity. ODBC का मतलब है Open Database Connectivity. These are the connectivity methods that you use whenever you want to establish a connection between an application and the database. जैसे अभी आप हैव यू स्टार्टेड जावा? जावा पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं, अभी ऊप्स पढ़ोगे ना, अभी नहीं पढ़ा ना जावा। तो अभी तो आप वैसे भी कोर जावा पढ़ोगे, एडवांस जावा विल कम इन 7th सेमेस्टर। तो उसके अंदर यू विल लर्न अबाउट JDBC ODBC की कैसे हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। यू विल लर्न ऑल द कमांड्स कि हम कैसे, JDBC का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अगर जावा बेस्ड एप्लीकेशन है or you want to make use of a database which is at some other location, so you will have to establish a connection by using a JDBC connectivity. JDBC connectivity आप तभी यूज कर सकते हो जब आप जावा बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। When you are using some other application which is making use of some other programming language, then you can use of open database connectivity. So 2 tier का basic example मैं क्या देना चाहती हूँ कि 2 tier architecture is a kind of an architecture where you can give an example of a client server machine. You are working on an application which is on the client machine, ठीक है, and your application is making use of a database. जो database कहाँ पर है? किसी और server पे है, which is some other machine जिसको आप क्या बोल रहे हो? server. Now, in order to access the data from the server, आप क्या कर रहे हो? Your application is sending the request. Application क्या भेजती है? Request भेजती है, server उस request को process करता है और आपको रिटर्न करता है रिस्पॉन्स। ठीक है, यही काम होता है ना, यू विल सेंड द रिक्वेस्ट, योर रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड योर रिटर्न रिस्पॉन्स जो है वो आपको पास वापस आता है। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ योर 2 tier आर्किटेक्चर, 2 tier DBMS आर्किटेक्चर, जिसमें आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर है? क्लाइंट मशीन पे है, यू आर वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? कोई भी एग्जाम्पल यू वांट टू पुट अप ऑन? जैसे अगर आप कोई भी अपने सिस्टम पे एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, और वो कोई डेटाबेस का यूज कर रही है, जैसे अगर कोई वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट तो आपके सिस्टम पे नहीं है ना। अगर मैं IRCTC की बात करूँ या इंडियन पासपोर्ट साइट की बात करूँ, या इफ आई टॉक अबाउट फेसबुक और अमेजोन, तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे 3 tier में, जो मैं भी आपको बताऊंगी। 2 tier का एग्जाम्पल क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो आपके सिस्टम पे बनी हुई है, एप्लीकेशन इज ऑन योर सिस्टम, और जो किसी डेटाबेस का यूज कर रही है जो सर्वर पर है,
ठीक है, अब आपको अपनी एप्लीकेशन और सिस्टम में कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, डेटाबेस सिस्टम और अपनी एप्लीकेशन के बीच में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ JDBC और ODBC कनेक्टिविटी। अब आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजेगी और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा सर्वर, और वहां से आपको मतलब डेटाबेस से क्वेरी का आंसर ढूंढ के आपको रिस्पॉन्स वापस भेजेगा। ठीक है, सो क्लियर है, 2 tier आर्किटेक्चर क्लियर है गाइस? जो यूजर इंटरफेस है और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है दैट रन ऑन द क्लाइंट मशीन, ठीक है, यहाँ पर सर्वर है, सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द क्वेरीज एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब कि अगर आपको कुछ ट्रांजेक्शन क्या होती है, विल बी स्टडिंग, अभी डोंट गेट कंफ्यूज विद ट्रांजेक्शन वर्ड, अभी आप सिर्फ समझो कि जो भी क्वेरी आप पूछ रहे हो कि लेट्स सपोज यू वांट टू नो कि जैसे कोई ऑफिस है उसमें जैसे उनके हर जगह पे ऑफिसेस होते हैं ना, तो आपका जो मुंबई का हेडक्वार्टर है वो गुजरात के हेडक्वार्टर से पूछ रहा है कि वहां पर कितने एम्प्लॉयज करंटली प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन इज ऑन द मशीन विच इज सिचुएटेड ऑन इन मुंबई, और आप गुजरात के डेटाबेस से कुछ एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, आपको पहले तो मुंबई और गुजरात की जो सर्वर और क्लाइंट मशीन है उसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा। तो मेन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज ऑलवेज when you are working with client and server, you need to establish a connection so that your query can be processed. ठीक है, you will send your query will be processed and the response will be returned back to the client machine. ठीक है, यहाँ पे जो application है, one thing you need to remember always that your application is directly in touch with the database with the help of the connection, क्योंकि इनके बीच में आपस में connection है, they have handshake. हैंडशेक इज अ कीवर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं कि दे हैव हैंडशेक, मतलब कि दोनों में आपस में एक काइंड ऑफ अ हैंडशेक हो गया है कि यस, जो भी आप मुझसे पूछोगे आई विल आंसर यू। ठीक है, तो दे विल एबल टू पीक मतलब कि एप्लीकेशन कैन एग्जैक्टली लुक अपॉन द डेटाबेस सिस्टम, वो अपनी क्वेरी को इससे पूछ सकती है और रिस्पॉन्स उसको मिल सकता है। तो दिस इज एन एग्जांपल और दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 tier आर्किटेक्चर। 3 tier आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देखो 2 tier आर्किटेक्चर में क्या है कि यहाँ पे ना कोई बीच में कोई मिडिल लेयर नहीं है, मतलब देयर इज नो काइंड ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल, एप्लीकेशन कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस सिस्टम। डायग्राम में देखो कोई बीच में मिडिल लेयर दिख रही है नहीं ना, एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है डेटाबेस सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ द सर्वर, और अगर कोई मैलिशियस क्वेरी एग्जीक्यूट करे तो वो आपके सिस्टम को क्रैश भी कर सकती है ना, मतलब कि अगर कोई बैड एप्लीकेशन है वो कोई अगर मैलिशियस क्वेरी एग्जीक्यूट करती है तो देयर वो कुछ आपके अगर कुछ इंसर्ट करा उसमें कुछ रॉन्ग डेटा इंसर्ट कर सकती है, या अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को डिलीट कर सकती है। तो यहाँ पे देयर इज नो काइंड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज एट रिस्क इफ यू टॉक अबाउट 2 tier आर्किटेक्चर। ठीक है, इस सिक्योरिटी वाले और इसमें यूजर्स जो होंगे ना वो यूजर्स भी लिमिटेड होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे पहले के टाइम पे कोई वेबसाइट्स तो नहीं होती थी ना, अगर आपको कोई टिकट बुक करानी है तो आप क्या करते थे, यू विल गो टू द आप इंडियन रेलवे के काउंटर पे जाते थे। ठीक है, आप काउंटर पे खड़े हो, जो वहाँ का जो भी सर्विस मैन है who is sitting at the other side of the window and you are on the other side of the window, आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, वो अपनी एप्लीकेशन में आपकी जो भी उसके पास एप्लीकेशन है, क्योंकि इंडियन रेलवे की एक अपनी एप्लीकेशन होगी जो उसकी मशीन पे चल रही है, लोकल मशीन पे चल रही है। ठीक है, इट इज नॉट ऑन द क्लाउड, वो यू कैन नॉट एक्सेस द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ्रॉम योर मशीन, आपको वहां पर जाना होगा, जो उसके पर्टिकुलर लोकल मशीन पे अवेलेबल है वेबसाइट एप्लीकेशन, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी, उस एप्लीकेशन ने अपने डेटाबेस से सर्च किया कि हाँ टिकट अवेलेबल है, तो उसने टिकट बुक कर दी। तो ये एक एग्जांपल आई कैन पुट अप फॉर 2 tier आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी इज एट रिस्क। तो 2 tier आर्किटेक्चर क्लियर हुआ, शैल आई प्रोसीड विद 3 tier आर्किटेक्चर। इशिता, जतिन कुमार, कनिष्क,
हाँ जी. Yes, ma'am, you can. Yes, ma'am, you can. Okay, so let's start with the 3-tier architecture. 3-tier architecture, as a name says, देखो 1 tier में कोई लेयर नहीं होती, एक ही मशीन है, उसी के अंदर आपकी एप्लीकेशन है, उसी के अंदर आपका डेटाबेस है. 2 tier में you have 2 layers. One is your client machine, one is your server machine. ठीक है. And as the name says, 3-tier architecture में, in order to provide security, in order to avoid the case where your application can directly access your database, you will provide one layer in between of your client and server, जिसको हम बोलते हैं application client and application server. Basically इसका diagram अगर आप दूसरा diagram देखो तो इसके अंदर एक business layer होती है. Let me show you one more diagram. एक मिनट, let me just search. तो मेहुल अटेंडेंस भेज दी थी आपने पहले वाले लेक्चर की? यस मैम, इस लेक्चर की भी रिकॉर्ड कर ली. अच्छा, थैंक यू. I'm just looking up the good image of 3-tier architecture, then I'll show you that. Okay. तो यहाँ पे it is again बेसिकली 3-tier आर्किटेक्चर में ना आपकी जो क्लाइंट मशीन है और जो सर्वर मशीन है जहाँ पर आपका डेटाबेस स्टोर है, योर एप्लीकेशन जो क्लाइंट मशीन पे है कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस. उसके बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर भी होता है.